Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. If you remember, in previous lecture, we have solved various practical problems related to book value per share, earning per share, return on common equity, return on investment, and we have solved various exercises, and we have discussed about the fund flow statement and cash flow statement in very detail. Cash flow statement based on three items: operating activities, investing activities, and financing activities. And we have discussed about the uses of financial statements, and we have solved the practical exercises. Dear students, today we will discuss the financial ratios and statement of cash flows, and we will solve the practical problems. I would like to continue the discussion about cash flow statement. Basically, we can prepare the cash flow statement with the usage of two methods: direct method and indirect method. What is difference between two methods? Only there will be a difference between two methods when we will prepare the operating activities. Only difference will be basically implemented. यानी कि जब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस करना है तो ये डिफरेंस जो है वहाँ पे आएगा. फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ दोनों मेथड के साथ सेम वे में आएगी, तो लिहाजा सिर्फ फ़र्क है इनकम स्टेटमेंट आइटम्स का. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टू. In case of direct method, present the income statement on a cash basis and encourage the Financial Accounting Standard Board Rules 95 and supplemental information required reconciliation of net income to cash provided by the operations. And we will discuss the direct write-off method in detail in coming slides. And what about the indirect method? Indirect method adjusts net income for items that affected at net but did not affect the cash, and supplemental information required cash paid for income taxes and for the interest. So dear students, first of all, I would like to discuss the direct method when we will prepare the cash flow statement. Now you will understand very well about the direct method. When we will deal with the direct method, cash flow from operating activities, we will mention all details about the cash receipts, like cash received from customers. हम पूरी डिटेल लिखेंगे कि हमने कस्टमर से कितना कैश रिसीव किया. And we will add up the cash paid to suppliers and employees, कि हमने suppliers को जहाँ से हमने इन्वेंट्री परचेज की थी और employees को कितना कैश पे किया. Then we will clarify the interest received, how much interest we have received, तो वो भी हम बिल्कुल क्लैरिटी से लिखेंगे. Then we will mention the इंटरेस्ट पेड, हाउ मच इंटरेस्ट वी हैव पेड, तो ये भी डायरेक्ट मेथड में हम क्लियर लिखेंगे. एंड वी विल मेंशन द इनकम टैक्सेस पेड इन डिटेल. देन नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. ये था आपका डायरेक्ट मेथड जिसमें हमने पूरी डिटेल लिखी. इनडायरेक्ट मेथड में इस डिटेल की ज़रूरत नहीं होती. एंड प्रेजेंट द इनकम स्टेटमेंट ऑन ए कैश बेसिस. तो ये जो इनकम स्टेटमेंट हम प्रेजेंट करेंगे ये कैश बेसिस है, क्रेडिट बेसिस नहीं है. ये बात आपने माइंड में रखनी है. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू दी कैश बेसिस, नॉट रिलेटेड टू दी क्रेडिट बेसिस. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस दी कैश फ्लो स्टेटमेंट with the method of indirect method, how we can prepare the operating activities with the indirect method. First of all, we will mention the net earnings,
net income, net profit. Then we will add up the provision for depreciation, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा एक नॉन कैश आइटम है, तो वो भी इसमें हम ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स. देन वी विल ऐड अप द provisions for allowance for doubtful accounts. Then deferred income taxes we will discuss in the indirect method. Then loss on property, plant, equipment and machinery disposals, change in operating assets and liabilities. तो dear students, increase in receivables हम मेंशन करेंगे. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, we will mention all working capital amounts, and working capital amounts are related to the two items, current assets and current liabilities of the business. That's why we will mention the receivables increase or decrease, and increase or decrease in inventories we will mention in the operating activities related to indirect method of the business. Then we will discuss the accounts payable increase or decrease, and we will mention the accrued income taxes, when it will be increase in accrued income taxes or decrease in accrued income taxes, it will be mentioned. Then we will mention the net cash provided by operating activities. Keep in mind one thing, adjusted net income for items that affected net income but did not affect the cash. तो ये था डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया कि कैश की सारी डिटेल लिखी कि कहाँ से कैश आपका आया और कहाँ पे कैश गया. लेकिन इन केस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड जस्ट वी विल डील इन डिटेल नेट अर्निंग्स, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर allowance for doubtful accounts and deferred income taxes and loss on disposal of plant and assets and current liabilities and current assets. तो dear students, मैंने आपको जैसा कि बताया कि when you are preparing cash flow statement, only difference between indirect and direct method is related to the operating activities. In case of in two methods, according to basically direct and indirect method, financing and investing activities will be prepared in the same way. तो dear students, you can see कि ये एक एनालिसिस आपके सामने है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज under the direct method and under the indirect method. You can see first of all cash flow from operations, cash received from customers, you can see $370,000, and cash paid to suppliers and employees, that is $310,000, and interest received, you can see 10,000 is given. Interest received is part of your cash inflow, and interest paid is part of your cash outflow. Then income taxes paid, part of the cash outflow. Net cash provided by the operating activities. ये मेथड था डायरेक्ट मेथड. नाउ वी विल सी इन केस ऑफ इनडायरेक्ट मेथड हाउ वी कैन प्रिपेयर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. लाइक net earnings $40,000 is given, dear students. Then we add up the provision for depreciation, that is 6,000, and then we will add up the provision for allowance for doubtful accounts, that is $1,000. Then deferred income taxes are given, and loss on property, plant and equipment disposals is given $2,000. Then change in operating assets and liabilities, you can see receivable increase हो गए आपके 2000 से, तो that shows the usage of the business. और inventories increase हुई, that also shows the usage of the business. Then accounts payable increase, it is related to the sources of the business. And accrued income taxes increased, that is related to the sources of the business. Net cash provided by the operating activities is $50,000.
$1,000. Basically, when you will deal with the direct method or indirect method, operating activities, income or cash will be the same. There will be no difference regarding net cash provided by operating activities. ये दोनों का एनालिसिस आपने देखा, तो इसलिए आपको समझ भी आ गई होगी. तो डियर स्टूडेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स 30,000. आप देख सकते हैं कि क्यों बेसिकली आपका इंक्रीज इन एसेट्स हुआ, दैट्स वाई शोज दैट दी माइनस साइन कि आपका कैश आउटफ्लो है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है. प्रोसीड फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्पोजल्स. इट मीन्स कि आपने प्लांट इक्विपमेंट को बेचा है जिसकी वजह से आपको $6,000 रिसीव हुए. दैट शोज दी सोर्सेज ऑफ दी बिजनेस. मैंने आपको बताया कि कैश आएगा तो हमारा सोर्स होगा, चाहे लोन से आए चाहे उस आपके एसेट बेचने से आए. अगर कैश जाएगा तो हमारा आउटफ्लो होगा. तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 24,000. ये कैसे आया? 30,000 आपका आउटफ्लो है, इनफ्लो आपका 6,000 हुआ, तो आपने माइनस कर दिया, तो माइनस रिजल्ट बेसिकली नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस $24,000. Now dear students, that is financing activities. You can see in case of financing activities, you can see first item, net proceeds for payment of commercial paper 4,000. You have paid money in this case, and it shows that bracket payment shows that the minus payment. It means it shows that the cash outflows $4,000. Now another payment is proceed from issuance of long term debt. कि आपने लॉन्ग टर्म डेट इशू की, उसके बदले में आपको कैश मिला, बॉन्ड भी हो सकते हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू द कैश इनफ्लोज बिकॉज यू हैव रिसीव्ड द कैश इन दिस केस. अदर थिंग इज यू हैव पेड द डिविडेंड, दैट इज 5,000. व्हेन यू विल पे द डिविडेंड, दैट विल बी रिलेटेड टू द कैश आउटफ्लो फॉर द business. Then you can see net cash provided by the financing activities are in front of you. That is 3,000 minus. How it is? Basically, you need to accumulate the negative amounts, 6,000 and 5,000, that will be 11,000. 5,000 and 4,000, that will be 9,000, minus cash inflow 6,000 is equal to 3,000. 3,000 is related to the basically negative amount is provided by the financing activities. So dear students, you can see कि एक ही बेसिकली कंटिन्यूशन में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट दे सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट अप द बेसिक नेम ऑफ द बिजनेस, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन पीरियड इज रिलेटेड टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट. You can see first of all, first heading will be related to the cash flow from operating activities. First item is given cash received from customers, that is 370,000, and cash paid to suppliers and employees जो कि माइनस में है, it shows that cash outflow. Then interest received is part of the cash inflow, then interest paid is part of the cash outflow, and income taxes paid is related to the cash outflow. Net cash provided by the operating activities are $51,000. Next is investing activities. You can see capital expenditure. It means you have invested money in your basically assets, and that is related to the cash outflow. That's why it shows in the brackets. Another thing is proceed from property, plant and equipment. That is related to the basically cash inflows because आपने कुछ assets बेचे, उसके बदले में आपको 6,000 cash receive हुआ. That's why it is related to the cash inflows. Net cash provided by the investing
activities is 24,000 minus. Then dear students, financing activities, you can see financing activities is related to the long-term debts and dividends and basically common stocks. Net proceeds from repayment of commercial paper, that is 4,000, that is outflow. Proceeds from issuance of long-term debt, that is 6,000. You can see it is related to the basically cash inflow. Another thing is dividend paid is related to the cash outflow. So dear students, net cash provided by the financing activities is 3,000 minus. You can see increase in cash. How we can calculate the cash increase or decrease? Basically तीनों को आप एक्यूमुलेट कर दें. 51,000 आपकी पॉजिटिव कैश है ऑपरेटिंग में, इसमें से माइनस कर दें इन्वेस्टिंग की 24 और फिर आप माइनस कर दें 3,000, तो दैट विल बी कैश इंक्रीज 24,000. देन we need to add up the beginning cash balance, that is 8,000. Total cash will be is $32,000. So dear students, now we will discuss the basically cash flow statements is related to the indirect method. You can see operating activities is given first, net earnings of the business is given $40,000, then provision of depreciation 6,000 and provision of allowance for doubtful accounts 1,000. Then deferred income taxes are given 1,000. Loss on property, plant and equipment, that is 2,000. You can see are related to the cash inflows of the business. Then receivable increased, it shows that the cash outflow. Inventories increased 4,000, it shows the basically cash outflows of the business. Then accounts payable increase, that is 5,000, and accrued income taxes increase 2,000. Both are related to the cash inflows. Net cash provided by the operating activities is $51,000. So you can see basically only difference between direct and indirect method is in case of when you are preparing कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जब आप प्रिपेयर करेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड अफेक्ट करेगी, लेकिन रिजल्ट विल बी दी सेम. नाउ यू कैन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ same procedure, same way, there is no difference between direct and indirect method. Then dear student, you can see regarding financing activities there is no impact of direct and indirect method when you will prepare the financing activities. Basically in under the both methods it will be the same way. So dear students, at the end you can see increase in cash is $24,000 and हमने ऐड कर दिया बिगिनिंग कैश बैलेंस दैट इज $8,000. टोटल एंडिंग कैश विल बी दी $32,000. तो ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि व्हेन यू विल प्रिपेयर दी बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस है. वो क्या है कि डायरेक्ट मेथड में आप पूरी डिटेल लिखते हैं कैश कहाँ से आया कहाँ खर्च हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में जस्ट आप नेट अर्निंग और डेप्रिसिएशन और अदर आइटम्स आप ले लेते हैं. तो ये डिफरेंस है. बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को प्रिपेयर करते हुए देयर इज नो डिफरेंस. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज. व्हाट इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीड द क्वेश्चन. जोन्स क्लॉथिंग स्टोर presented the following statement of cash flows for the year ended December 31st, 2010. Statement of cash flows is given in front of you. Cash received, all items are given A to K. Then what is the requirement? Requirement is prepare a statement of cash flow in proper form. इसका मतलब है जो क्वेश्चन में गिवन वो प्रॉपर फॉर्म नहीं है. कमेंट ऑन द मेजर flows of cash. First of all, we need to prepare the cash flow statement.
मेरे साथ रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी का नाम लिखेंगे, जॉन्स क्लॉथिंग स्टोर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे, जॉन्स क्लॉथिंग स्टोर, देन नेम ऑफ स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, पीरियड क्या लिखेंगे आप, December 31st 2010, लाइन लगा देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डील करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, cash received from sale to customers। क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, दैट इज $200,000। Then interest income received interest income is given, that is 10,000। Then payments for inventory given है, $80,000 क्वेश्चन में गिवन, आप देख सकते हैं। ये हमने ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि ये आउटफ्लो है। जब हम पेमेंट करेंगे इन्वेंट्री के अगेंस्ट तो डेफिनेटली दैट विल बी आउटफ्लो। देन पेमेंट टू एम्प्लॉइज, ये भी आप क्वेश्चन से देख सकते हैं, दैट इज 60,000। ये भी हमने ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि ये आउटफ्लो है डियर स्टूडेंट्स। देन नेट कैश provided from operating activities। कैलकुलेटर लें, आप टोटल कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप टोटल कर लें जो नेगेटिव अमाउंट्स हैं, 80,000 प्लस 60,000, दैट विल बी 140,000। 140,000 को माइनस कर दें जो आपकी पॉजिटिव अमाउंट्स हैं, 200,000 प्लस 10,000 माइनस 140,000, दैट विल बी $70,000। दैट इज बेसिकली कैश प्रोवाइडेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ वी कैन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम investing activities। Next step is cash flow from investing activities। First of all, cash received from sale of
property, plant and equipment। तो ये हम क्वेश्चन से देख सकते हैं। क्वेश्चन पे वापस जाएं। दैट इज 100,000 next is payment for stock of another company। जब आप किसी और कंपनी का स्टॉक परचेज करेंगे देन यू विल हैव टू पे दी मनी। क्वेश्चन से देखेंगे हम। $150,000। So dear students, that will be negative and it shows that the cash outflow। Next item is payment for purchase of equipment। For acquisition of equipment you can see 200,000। That will also be negative because that shows the cash outflow। Next item is cash provided by investing activities। टोटल कर लें आप, पहले नेगेटिव अमाउंट्स कर लें। 200,000 प्लस 150,000 टोटल हो गया जी 305,000। 50,000 इज बेसिकली माइनस अमाउंट, माइनस 100,000 total will be 250,000 minus amount। Basically that shows the minus amount is related to the investing activities। Now we will calculate the financing activities। Cash provided from financing activities। First item will be received from cash received from loans from बैंक। तो ये क्वेश्चन से आप देख लें डियर स्टूडेंट्स। लोन्स फ्रॉम बैंक आर रिलेटेड टू दी $50,000। Then cash received from issuance of stock related to common stock। ये भी हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। That is you can see 150,000 that is related to the cash inflow। Previous amount also related to the cash inflow। Next item will be the cash received from issuance of bonds। वो भी देख लेते हैं हम क्वेश्चन से। That is 100,000। That is related to the cash inflow of the business। Now we can add up another item। What is the next? Payment of dividends।
ये भी हम क्वेश्चन से अमाउंट ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 20,000। ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, दैट इज रिलेटेड टू द कैश आउटफ्लो। नाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल अमाउंट, कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर आपके पास है, आप कैलकुलेशन कर लें। पहले आप जो प्लस वाली अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लें, 50,000 प्लस 150,000 प्लस 100,000 माइनस अमाउंट वाली 20,000, टोटल विल बी 280,000। ये है जी कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देन नेट इंक्रीज इन कैश। तो डियर स्टूडेंट्स हमें देखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे पास 70,000 कैश आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज $70,000 और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में $250,000 नेगेटिव अमाउंट है और फाइनेंसिंग में $280,000 पॉजिटिव अमाउंट है। इन सब का टोटल चेक कर लें, 280,000 प्लस है, प्लस 70,000 माइनस 250,000 बिकॉज कि ये माइनस में है। तो नेट इंक्रीज इन कैश इज $100,000। तो व्हाट इज द रिजल्ट? नेट इंक्रीज इन कैश इज 100,000। क्या हमने किया? एट द एंड हमने एक समरी बनाई कि हमारा नेट इंक्रीज कैश में कितना हुआ। तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अमाउंट को एक जगह समरी बना के लिख लिया और हमने देखा कि पॉजिटिव वाली अमाउंट को हमने अलग कैलकुलेट कर लिया, फिर माइनस वाली माइनस कर दी। तो नेट इंक्रीज इन कैश इज $100,000। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इन क्वेश्चन? Comment on the major flows of cash. Now we can discuss the flows. John's clothing store, if you can see, had a major inflow of funds from financing activities, that is $280,000, and a major outflows of funds for इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दैट इज 250,000। यानी कि मेजर इनफ्लो जो है वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ रहा है और आउटफ्लो इन्वेस्टिंग में जा रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जनरेटेड अ नेट इंक्रीज ऑफ $70,000। ये आप इस क्वेश्चन की डिस्कशन थी। वी कैन डिस्कस अनदर क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? The balance sheet for December 31st, 2010, December 31st, 2009 and the income statement for the year ended December 31st, 2010 for Rocket Company follows. ये आपके सामने बैलेंस शीट की आइटम है फॉर ईयर 2010 एंड 2009 और ये भी बैलेंस शीट के आइटम है, वो एसेट्स वगैरह थे, ये लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी साइड है। देन यू कैन सी इनकम स्टेटमेंट इज गिवन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st, 2010। देख सकते हैं आप। और नोट में लिखा हुआ है कैश डिविडेंड्स $68,000 वर पेड ड्यूरिंग 2010। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स डियर स्टूडेंट्स? प्रीपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर 2010
present cash flows from operating using the इनडायरेक्ट मेथड। लास्ट वाला क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट मेथड से था, इसमें वो कह रहा है इनडायरेक्ट मेथड आप यूज करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिजनेस का नाम लिखेंगे, रॉकेट कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेम ऑफ द स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2010. First of all, cash flow from operating activities, from operating activities. Dear students, first of all we will deal with the net income. Net income is given in the question, that is $45,000. You can see $45,000. Add, deduct income not affecting operating cash तो डियर स्टूडेंट्स देखेंगे हम कि क्या डेप्रिसिएशन इज गिवन। यस, डेप्रिसिएशन इज गिवन 15,000। ये हमारे कैश को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन हम इसको एनालिसिस पर्पस के लिए यूज करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 15,000, ये ऑलवेज इनफ्लो का हिस्सा होता है। नेक्स्ट इज वी विल बेसिकली डिस्कस दी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स हमारे पास है, अगर आप देख सकते हैं, सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल है। कैश को हम डील नहीं करते। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, we will deal with the basically cash flow statement. In case of cash flow statement, account receivable, you can see 2009 में 70,000 आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं, जो कि 2010 में 60,000 हो गए। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, 70,000 से 60,000 हो गए, इसका मतलब है डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल। हम भी इसी तरह ट्रीट करेंगे इसको, डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितने डिक्रीज हुए। बहुत आसान है, क्वेश्चन में गिवन है 70,000 60,000 हो गए, तो 10,000 जो डिफरेंस है ये डिक्रीज हुआ। तो 10,000 हम यहां पे लिख देंगे। देन वी कैन सी द इन्वेंट्री। व्हाट इज द इन्वेंट्री पोजीशन? Inventory was basically 100,000 in 2009. Now at this moment in 2010, 80,000. तो decrease in inventory. क्यों 1 लाख पहले थी, अब 80,000 हो गई, तो डिफरेंस क्या हुआ? Can you tell me? प्लीज जल्दी से बताएं। Very simple, 20,000. Decrease in inventory 20,000। तो जब एसेट में डिक्रीज होगा तो हमारा सोर्स होगा। नेक्स्ट आइटम इज बेसिकली नाउ वी विल सी दी करंट लायबिलिटीज। ये करंट लायबिलिटीज गिवन है आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स पेबल in 2009 is 35,000 and 30,000 in 2010. To decrease in accounts payable how much? Please बताएं। Only 5,000. 35,000 minus 30,000 difference will be $5,000. Decrease in accounts payable.
इट शोज दैट द कैश आउटफ्लो क्यों डिक्रीज हुए कि यू हैव पेड द कैश टू द क्रेडिटर्स. नाउ नेक्स्ट आइटम, इनकम टैक्सेस पेएबल इंक्रीज हुए. 3000 थे अब 4000 हो गए तो इंक्रीज हुआ. इट मीन इट शोज दैट द इनफ्लोज इनकम टैक्सेस इंक्रीज in income taxes payable amount is 1000. तो ये हमारा इनफ्लो है. नेक्स्ट आइटम इज वेजेस पेएबल. वेजेस पेएबल आपकी पहले 3000 थी, नाउ इंक्रीज इन वेजेस पेएबल 5000. तो ये भी हमारा इनफ्लो को शो करता है. इंक्रीज इन wages payable 2000. तो डियर स्टूडेंट्स समझ आपको आ रही होगी उम्मीद है. नाउ नेट कैश प्रोवाइडेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैलकुलेटर आपके पास है. माइनस वाली अमाउंट अलहदा से आपके ऐड अप होंगी और प्लस वाली अलहदा से. सबसे पहले मैं प्लस वाली कर रहा हूँ. 45,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 93,000 माइनस वाली अमाउंट 5,000. टोटल विल बी $88,000. तो डियर स्टूडेंट्स ये थी कैश प्रोवाइडेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद द यूज ऑफ इनडायरेक्ट मेथड. नाउ वी विल कैलकुलेट द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. कैश रिसीव्ड. क्वेश्चन में देखते हैं जी क्या दिया हुआ है. तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि 2009 में आपके 115,000 के एसेट थे और आपके 2010 में बेसिकली 130,000 के हो गए. तो $15,000 का इंक्रीज है आपके एसेट्स में. तो ये आएगा जी कैश पेड फॉर परचेज ऑफ. एसेट का नाम क्या है? बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट. बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट. डिफरेंस विल बी $15,000 और ये आपका माइनस के साइन को शो करेगा और इट इज रिलेटेड टू दी कैश आउटफ्लो. क्योंकि आपने बिल्डिंग या इक्विपमेंट खरीदा है तो 15,000 आपने कैश पे किया है. नाउ वी विल डील विद दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. Cash from issuance of stock. क्वेश्चन से हम देखते हैं जी. और ये आइटम हमें लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी साइड से मिलेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे लाइबिलिटी पोर्शन है. आप देख सकते हैं कि इन 2009 कॉमन स्टॉक्स आर गिवन 100,000. इन 2010 it has increased $10,000. तो 10,000
इंक्रीज हुआ तो वो हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखना है। $10,000 that shows the basically related to the basically inflows। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ मैंने पास दिया। नाउ वी विल डिस्कस दी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हमने एक ही आइटम है उसमें बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वेरियस आइटम्स हैं। सबसे पहले हमने क्या रिसीव फ्रॉम इशुएंस ऑफ स्टॉक, जो कि आपने देखा 100,000 के 2009 में गिवन है, 110,000 के कॉमन स्टॉक 2010 में। डिफरेंस जो है वो 10,000 के है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशुएंस ऑफ स्टॉक इज 10,000। दैट शोज द कैश इनफ्लो। व्हाट विल बी द नेक्स्ट आइटम, सी इन क्वेश्चन। कैश पेड for the retirement of notes payable, क्वेश्चन से देखें जी, आपके सामने है जी नोट्स पेएबल। पहले आपके 60,000 थे 2009 में, 50,000 हो गए 2010 में। डिफरेंस जो है वो डिक्रीज है कितनी अमाउंट का, हाउ मच, कैन यू टेल मी? वेरी सिंपल, डिफरेंस बिटवीन 60,000 एंड 50,000 दैट विल बी $10,000। और मैंने ब्रैकेट लगा दी। इट शोज दैट द कैश आउटफ्लो। व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम, कैश डिविडेंड पेड। तो ये अमाउंट आपके क्वेश्चन में गिवन है डियर स्टूडेंट्स। यू कैन सी इन फॉर्म ऑफ नोट कैश डिविडेंड $68,000 टू दी स्टॉक होल्डर्स। यह मेंशन कर लेंगे। जब डिविडेंड पे करते हैं तो ऑलवेज रिलेटेड टू दी कैश आउटफ्लो। नाउ वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर से आप पहले माइनस वाली अमाउंट कर लें ऐड अप। 68,000 प्लस 10,000 दैट इज 78,000 माइनस 10,000 नेगेटिव 68,000। Now we can calculate the computation of net increase in cash। तो वही आप समरी बनाएंगे। सबसे पहले कैश प्रोवाइडेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हम देख सकते हैं पीछे वाली स्लाइड से, दैट इज $88,000। देन कैश प्रोवाइडेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दैट इज 15,000 minus then cash provided from financing activities minus 68,000। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली 88,000 minus 15,000 minus 68,000 5,000 net increase in cash $5,000। तो बड़ी सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट है
उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। मैं बड़ा स्लो चल रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ विल सी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज कंप्यूट द रेशियो ऑपरेटिंग कैश फ्लो divided by current liabilities, maturities of long term debt and current notes payable। ये कैश फ्लो की रेशियो है, बड़ा सिंपल फार्मूला है। ये स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कैलकुलेट दी व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, रेशियो ऑपरेटिंग कैश डिवाइडेड बाय करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स एंड करंट नोट्स पेएबल। मेरे साथ रहिएगा, फार्मूला लिखते हैं। कैश यहाँ भी पा दे भाई। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी कैश फ्लो रेशियो, दैट इज फार्मूला विल बी कैश फ्रॉम operations or operating activities divided by current maturities of long term debt and current नोट्स पेएबल। तो ये फार्मूला होगा कैश फ्लो रेशियो का। कैश फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है $88,000। सिंपल आप लिख देंगे डिवाइडेड बाय $50,000 दैट इज रिलेटेड टू करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड करंट नोट्स पेएबल। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेशन कर लें। सिंपल कैलकुलेशन है। 88,000 डिवाइडेड बाय 50,000 दैट इज 1.76 टाइम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी कैश फ्लो की रेशियो थी, सिंपल सी रेशियो। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। What is the next requirement? Comment on the statement of cash flows and the ratio computed in part B। तो ये स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल सी डिस्कशन है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि कैश प्रोवाइडेड 88,000 फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश बेसिकली प्रोवाइडेड कैश आउटफ्लो फ्रॉम द investing activities $15,000 and you can see 68,000 main cash provided from the operating activities of the business. Now we can discuss in formal way. Significant cash flow came from operating activities, that is $88,000, and while significant cash outflow in financing activities, that is $68,000, and cash outflow in investing activities, that is $15,000. Dear students, most of the flow for financing activities went for $68,000 as a dividend. You can see major portion of cash outflow is related to the dividends that is distributed among the shareholders of the business. The ratio cash from operations divided by current maturities of long-term debt and current notes payable was 1.76 times. This indicates significant liquidity from operations to cover current debt। क्या मतलब कि कंपनी के पास $88,000 है, जबकि उसको $50,000 पे करने हैं, तो 1.76 टाइम्स, यानी कि अगर $1 वो डेट पे भी कर दे तो 0.76 सेंट जो है कंपनी के पास कैश मौजूद रहेगा। तो दिस इज गुड साइन फॉर द बिजनेस कि कंपनी हैज एनफ कैश टू पे दी
long term debts. So dear students, now we will solve another question. Question is in front of you. Income statement items are given. Other data is also given. Now we need to prepare a cash basis income statement. Hurry up. Cash basis income statement. Name of the business, then income statement cash basis. Part Gibson company, income statement, cash basis, then for the year ended, December 31st, 2010, collections from customers, sales $900,000 minus increase in receivables that is 20,000, 880,000 that is related to the cash. Then cash paid for merchandise cost of goods sold that is 550,000 given in the question. Increase in inventory, it shows that the 30,000, then increase in accounts payable that is 10,000. ये हमारा बेसिकली सोर्स है. देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये भी हमारा सोर्स है 20,000 का, क्वेश्चन में गिवन है. तो टोटल आप कर लें, आपके सामने है कैलकुलेटर, बड़ी आसान है. 550,000 प्लस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000 that will be 550,000 payments. ये हम बेसिकली पेमेंट्स कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. देन कैश पेमेंट्स फॉर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हमारे पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस गिवन है. एक्सपेंसेस दैट इज 133,000 ये भी पेमेंट्स हैं. गुडविल amortized दैट इज 10,000. डियर स्टूडेंट्स, गुडविल जो है वो amortize हम एक साल पे उसका इफेक्ट नहीं डालते बल्कि उसको फॉर मैनी ईयर्स उसका इफेक्ट डालते हैं. दैट इज कॉल्ड गुडविल amortized. तो नेट रिजल्ट विल बी दी 123,000 ये भी पेमेंट्स है हमारी. नेक्स्ट विल बी कैश पेमेंट्स फॉर इनकम टैक्सेस. ये भी क्वेश्चन में गिवन है, सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स $65,400. तो डियर स्टूडेंट्स, हर आइटम को डिटेल में, तमाम हेडिंग्स को डिटेल में कैलकुलेट करने का नाम इनकम स्टेटमेंट
विद द कैश बेसिस है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डेफर्ड income taxes, that is 5,000, then decrease in income taxes payable, इसका मतलब है कि आपने पेमेंट कर दी है, that is 20,000। कैलकुलेटर है आपके पास, इसको टोटल कर लें, 65,400 plus 5,000 plus 20,000, that will be 90,400. Now we can calculate net cash inflow. तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड पे जाएं वापस, और हमारे पास 880,000 जो है वो कैश था, वो सबसे पहले कैलकुलेटर पे लिखें, माइनस कर दें आप मर्चेंडाइज की पेमेंट 550,000, देन माइनस कर दें आप सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस 123,000, देन डियर स्टूडेंट्स आप माइनस कर दें इनकम टैक्सेस की पेमेंट, दैट इज 90,400, रिमेनिंग बैलेंस विल बी 116,600 इज रिलेटेड टू दी नेट इन कैश इनफ्लो। तो ये हमारी कैश बेसिस इनकम स्टेटमेंट थी। नाउ वी कैन बेसिकली सॉल्व द अनदर रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? प्रिपेयर द कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग द इनडायरेक्ट अप्रोच। जस्ट वी नीड टू प्रिपेयर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वी डोंट नीड टू प्रिपेयर द इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मेरे साथ रहिएगा। नेम ऑफ द बिजनेस आप लिख लीजिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। All types of data is given related to this question. So dear students, first of all we will add up the net income because we are using indirect method. क्वेश्चन में जाएं तो नेट इनकम यहाँ पे होगी, दैट इज 155,600। then depreciation, adjustment to reconcile net income to cash, first of all depreciation expense. Depreciation expense is given in the question, you can see. So dear students, we were discussing income from operating activities. First of all हमने net income लिखी, then we need to add up the depreciation. You can see in other data depreciation is given, that is $20,000, वो हम लिख लेंगे। ये हमारा सोर्स होता है। Then goodwill amortization, that is 10,000, that is given in the question also. You can see B part, goodwill is given in basically in the question, $10,000, वो हमने लिख ली। Next item is decrease in deferred income taxes, ये भी अदर डेटा में गिवन है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 5,000, ये आउटफ्लो है क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है। नेक्स्ट इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, दैट इज 20,000, ये भी आपके कैश आउटफ्लो को शो करता है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। नेक्स्ट increase
in accounts payable, that is 10,000. जब accounts payable increase होंगे तो it shows that the cash inflow of the business. Next item is increase in inventories, that is 30,000. जब एसेट में इंक्रीज होगा तो ये कैश आउटफ्लो को शो करेगा डियर स्टूडेंट्स. लास्ट आइटम इज डिक्रीज इन इनकम टैक्स पेएबल, दैट इज 2000. इट शोज दैट द कैश आउटफ्लो. कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेट कर ले अमाउंट्स को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे नेट इनकम 151,600 प्लस 20,000 पॉजिटिव अमाउंट है, देन 10,000, देन फिर 10,000 पॉजिटिव अमाउंट गिवन है. माइनस कर देंगे हम सारी आउटफ्लोज को. फर्स्ट आउटफ्लो इज रिलेटेड टू 5,000 माइनस दोबारा क्रॉस चेक कर ले 151,600 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 अगेन माइनस 5,000 ब्रैकेट वाली अमाउंट्स, देन 20,000, देन 30,000, देन 2,000. तो नेट cash provided by operating activities that is $116,600. So dear students, net cash provided by the operating activities is 116,600. वेरी सिंपल. हमने नेट इनकम, डेप्रिसिएशन और करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज को यहाँ पे लिखा और नेट रिजल्ट निकाला. तो कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 116,600. वेरी सिंपल क्वेश्चन था. उम्मीद है कि कैश फ्लो के आज क्वेश्चन जो हमने किए हैं आपको बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ गए होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड द कैश फ्लो स्टेटमेंट and we have discussed the various methods, direct method and indirect method, and we have discussed under the various methods how we can prepare the cash flow statement. Cash flow statement based on three items: operating activities, investing activities and financing activities. And we have discussed the financial ratios related to the statement of cash flows, and we have solved the various exercises related to the cash flow statement and cash flow रेशियोज. उम्मीद है कि आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर था और आपको बहुत ज़्यादा समझ आ चुकी होगी. लेकिन आपका काम यह है कि इसकी प्रैक्टिस आप जारी रखें ताकि आपकी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप हो सके. कल तक के लिए इजाज़त. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.